Now, there's very important thing which I'm going to talk about here, and that particular thing is about the mindset. Okay, trust me, I have received more than 50 phone calls in last 10 days about whether I should practice or not, whether I should keep the clinic off for 6 months, whether I should sell my practice. I'm 55, 60 years of age. What shall I do? Shall I stop practicing permanently? Shall I take retirement from dentistry? And I have just started practice 1 month before, and I'm so scared to go to clinic. I am yet to, I'm about to start the practice, and my inauguration was on Akshay Tritiya or something. And I have received so many phone calls. And one thing which I have observed, that it is not just the protocols, but whatever is important is the mindset as well. Okay, you and me will have to ensure the proper mindset when we go to our workplaces. Okay, otherwise, no matter how foolproof we are and our practices are in regards or with respect to the protocols, we will still be afraid at the back of our mind. We will still not be comfortable, and every single moment, every second, every minute you spend in your practice, okay, you will have अपना जान मुट्ठी में लेकर आप काम करोगे, which is not good. Okay, so see, I always say in all my courses, and there are lots of participants here, and they know that I always say this: do your best and forget the rest. So our job is to do our best. Hello, Raju Verma sir. Regards to Anil Arora sir as well. Thank you so much for joining, sir. And this is just an attempt to show our friends and colleagues that how we are going to follow things at Smile Excel. Okay, so it's not just, I was talking about this, it's not just the protocols, but the right mindset which is important. So what I'm going to do now is, first I'll share the protocols, whatever the PowerPoint presentation I have prepared for myself, for all of you, for our practice and for our patients as well. At the same time, I'll also talk about the kind of mindset which you and me need to have. Then I'll also talk about what kind of modifications which you can do in these protocols, okay, depending upon your area of practicing, your type of clientele, and what kind of patients you get. Okay, I'll also toward the end answer all your questions if you have any. Okay, so my very simple request to all of you, that hold on to your questions till we complete the first part. Okay, and as I already said, if you want this particular presentation, I just put a Google form, and just share your email ID and mobile number, and I just email the same PDF with you as well. So I hope this should add some kind of value to all of you, right? So I'll just share my screen here, and try to show you what we are going to do at Smile Excel. So I hope you all are able to see my screen. Okay, so the practice protocols which we are going to follow at our center. Now there are protocols for patients, there are protocols for the front desk executive, there are protocols for the dental assistant, there are protocol for dentist. Okay, and there are protocol for housekeeping as well. So this is what we are going to do. Okay, and the treatment consideration. So I'll just go one by one. So when any patient wants to get the treatment done, so what we would advise or encourage patients from our side is the treatment should be by appointments only, for a very simple reason, that so that the entire team Smile Excel is prepared for it. Okay, so the treatment should be by appointment. Here I got a message that a few dentists are having or watching this Facebook Live with their team, with their staff as well. So I think I should try to go a little bit in Hindi as well, if that can help you. So I'll just go slide by slide, and after that, okay, just give me a moment. Yes.
Okay, so those of you, if there is anybody who is watching this with your team, and if you want me to talk about this in Hindi as well, just type something in the chat box with you or Hindi. Okay, just type Hindi if you want me to go in Hindi. Okay, let's see what is the majority, and accordingly we'll go ahead. Okay. So meanwhile, I'll just continue in English. And बाद में we can just talk about the same things in Hindi as well, right? So when patient considers the treatment, right, the first thing is they should do it by appointment only, right? Second thing, we have decided that we are going to send the patient information form. You know, that is the basic patient information and history which we fill when every patient comes to our center. So we are going to send that patient information form to the patient either on email or WhatsApp right before the visit itself. Okay, and along with that, we are going to send the consent form and the COVID declaration form. And we are going to encourage patient, we are going to ask patient to please read these forms completely. Okay, and if they have any doubts, any queries, if they want any clarification, okay, so if they want any clarification, they can get back to us over the phone instead of coming here and then, you know, spending more time. The one of the biggest thing, one of the most important thing when it comes to practicing dentistry during the COVID is to ensure that patient stays in the dental setup for the minimum time. Because there are two theories in the world. One says that you have to be minimum 30 minutes of contact with the positive patient in order to get the infection. Okay. The second protocol says it is not 30 minutes, but it is somewhere between 10 to 15 minutes. Okay. Now, whatever it is, let's consider that it is like 15 minutes. Okay. So you and me should ensure that patient should not wait for 15 minutes, you know, 10-15 minutes at one place, whether it's a reception desk, and also try to shorten the appointment in the operatories as well. So it is really important that if you send the patient information form, consent form, COVID declaration form in advance to the patient, and then ask for that information which we give them to fill, okay, either on the WhatsApp, or you just, you know, your front desk should just call the patient and ask them and fill the entire information. The purpose is so that when the patient comes, they know everything what they have told us, they know everything what is written in the forms, and they just have to do signatures and that's it. Okay, the purpose is to minimize the patient's time in the front desk or reception area as well as in the dental operatory. Okay, so now let me tell you one important thing. Few of you might be thinking that, you know, we practice in a rural area and here there is no question of any appointment and patient do not come with any appointment. Okay, so in that case, what should we do? Okay, in that case, what exactly we need to do and how we need to ensure that these forms are sent to the patient. Now, frankly, if you practice in the rural area, you cannot send these forms to the patient because many times patient directly come, right? Patient directly just walks in, and I have practiced myself in my hometown Pachora for 18 years. And I remember if I used to see around 20-30 patients a day, there were hardly 2 or 3 patients, like 10% of the patients who used to come by appointment, rest all were walk-ins. Okay, so in that case, this particular thing will not be applicable. However, every time the patient walks in, my advice will be, okay, my advice will be that you encourage patient to come with appointment next time, right? Just like that, Dr. Atmajit is saying that all patients are not tech savvy. Let me tell you, Dr. Atmajit, that nowadays everybody use WhatsApp. Okay, and it's not about how tech savvy or not they are. Everybody use WhatsApp, and basic reading
writing everybody understands. Okay, so I think that it should not be a problem, right? So many patients don't follow it. I understand. See, I tell you what, even in the bigger cities or elite practices also, it's not going to happen that every patient will sincerely follow all the protocols which we give to them. However, it is our attempt to ensure that we are trying to do our best and then forget the rest. Okay, so instead of thinking of creating some ideal scenario, and let me tell you, no matter how many, how much care you take, the ideal scenario will never be there. Okay, so this is an attempt to ensure that you do your best. So this is what we have decided for those patients who will cooperate, who will read and give us the information over the phone. If somebody walks in directly, they are welcome. Okay, because we need patients, right? So another thing for the patient before the appointment is they should brush their teeth properly before the appointment. I read it somewhere. I'm not very sure how authentic the information is, but I have read it somewhere that if you brush the teeth, the chances of the viral load in the saliva reduces or something. So it's anyway, otherwise also it is very good if patient brush the teeth and then come to the practice, right? So we are going to ask patient to brush the teeth properly, wear the half sleeve shirt and t-shirt, and there is a reason why we are going to ask this thing to the patient, and I'll tell you in some time. Okay, wear only sleepers or chappals so that they can be removed outside the clinic, and we will give them the shoe covers. Okay, it will be easy for them to shoe cover, use the shoe covers. Wearing mask is mandatory. Okay, make sure कि patient बगैर mask पहने आए ही नहीं आपके clinic में, and ask them to preferably visit alone. Naturally, if there is some differently able patient or child patient or especially ortho cases, okay, so you can just ask them to, maximum one person should accompany them rather than 2-3 people. Okay, so even if you practice in the rural area, so I think only one person should accompany them. So this is what I think we are going to do for the patient. Now, what came to my mind is, instead of keeping the question answers right in the end, okay, I'll just, once I finish, like, for patient protocol, then for receptionist protocol, I'll just keep on seeing what kind of questions are there and just try to, answer. Yeah, I'll share the form. Don't worry, guys. I'll share the form, even if you don't send your email ID here. In fact, what I would request you is just a moment. I'll just stop sharing the screen, and let me just first, share the form with you so that you can just fill the form and it will be easier for you also, actually. Just give me a moment, okay? Right? So, okay, I hope you got the link here. Dr. Nitin Khandelwal is asking that consent form should be separate paper sheet, not a binded book. Yes, of course, it's always a separate sheet. Okay, paper. Then, okay, cool. Dr. Vishwas says, sir, please switch to Hindi. So, shall we just switch to Hindi? Is it okay? ओके कूल यस सो एक काम करते हैं चलो हिंदी में बात करते हैं हाँ एंड एक बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर आवर फ्रेंड
Okay, Dr. Ninad said, he asked in the instructions, ask patient to avoid taking any NSAIDs or painkiller. Okay, because if you avoid taking any painkillers, the good thing will be the temperature will not be normal or subnormal. So thank you, Ninad sir, for this instruction. Yes, thank you for adding this. Okay, and this is cool. Why half sleeves? I'll tell you. Don't worry. Okay. When patient comes alone and if anything happens like syncope and all, अगर ऐसा कुछ होता है तो naturally हमें उसको normal वैसे ही treat करना पड़ेगा जैसे हम otherwise treat करते थे. Okay. So let's switch to Hindi. See, the purpose is not to make it very polished. The purpose is to make it useful for as many of you as possible. Right. So let's switch to Hindi. Right. No problem. So okay. So this is what I was sharing with you. I'll just share my screen once again. And okay, right. Online payment should be preferred, right? Okay, right. Then a few more things for the patient, that patient should carry only mobile phone and vehicle keys actually, sorry. No other accessories. And the reason is very simple, that we don't want any sort of, any kind of complication or, that they're putting their airbag or handbag or, anything outside in the waiting room. Of course, if they bring, you can always give them a disposable pouch and ask them to, okay, and I've just put the form once again. Okay, so right, so and just give me a moment. I just okay, pin the form here. So the purpose of why, see, I have just pinned the form at the top so that you can just fill the form and give your information. I'll send this PDF to you tomorrow itself. Okay, so this is the pinned comment, right? Okay, right. So let's move ahead now. I think it should be an uninterrupted one. So carry only mobile phone and vehicle keys. Why? So that they can keep this in their pocket and their hands are free when they come. Simple, right? Please be on time. If the patient comes on time, naturally the benefit will be, our front desk executive, our staff, our receptionist will be ready with whatever protocols which we have to follow, right? Ask patient to directly come to the clinic instead of waiting at some for some shopping or grocery or anything. Okay, ask them to do whatever shopping or grocery or vegetables, whatever they want to buy toward the end of it. Okay, instead of in the beginning, right? Then ask the patient to stop at the clinic's entrance. So these are the things which we think I think we should do for the patient. Okay, so before the appointment, for the receptionist or your front desk executive, what protocols should be followed? Okay, so brief them about how the dental visit will be. Now let me tell you, there are a lot of things which have changed for us as well. Okay, I'm sure all of you will agree and you will be with me on this, that so many things have changed. We ourselves are very new to a lot of things which we have to follow and we are following as of now. Our staff is very new to whatever we are following as of now, and definitely the patient will also, it will be new for the patient as well. Now your job is to ensure that make patient aware what they can or what they are going to witness or expect when they arrive.
Okay, because all of a sudden there will be somebody with the thermometer, there will be somebody with the pulse oximeter, there will be somebody in PP suits or surgical gowns, and patients are not used to this. Anyway, patients are very afraid of dental visits. So our job is to ensure that the dental phobia should be reduced to the minimum. Okay, it is very, very important that you and me reduce the dental phobia to the minimum. So it is the job of our receptionist or the front desk to tell the patient over the phone how their dental visit will be. Okay, so tell all those protocols which I have mentioned in the last couple of slides. At the same time, share those slides with them on the WhatsApp or email so that they can follow them properly before coming. Okay, at the same time, the call should make them comfortable and ensure one very important thing, that whatever is happening for the safety of them, for the safety of us and our entire family and the community around us or the society around us. So we have to ensure that none of the patients should bring COVID to the dental setup, and none of the patients should go back with this gift from us. Okay, it's not going to be a good thing, right? So brief. It is very important that the receptionist should brief about how the dental visit should be. Okay, then receptionist should send the patient information form, the consent form, and the COVID declaration form, and ask patient to read it. Then call back again and asking them if there is any problem. Okay. Oh, we had decided to shift in Hindi, right? So I forgot this. Okay. So आपके receptionist से बोले कि ये चीज को ध्यान में रखे कि पेशेंट को फोन कर कर ये बताना है कि अब डेंटल विजिट कैसे होने वाला है. तो हम स्माइल एक्सेल में हमेशा ये बोलते थे कि स्माइल एक्सेल इज एन एक्सपीरियंस टू बी एक्सपीरियंस. एक ऐसा अनुभव है जिसे आपने अनुभव करना चाहिए. लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस ढंग से हम लोग बहुत ग्रेसफुल वे में पेशेंट को वेलकम करते थे, पेशेंट को बैठाते थे, पेशेंट को चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे, अभी ये सब नहीं होने वाला है. ओके, क्योंकि पेशेंट जैसे ही आएगा, हमारा काम है कि पेशेंट से सिर्फ सिग्नेचर्स लेने हैं कंसेंट फॉर्म पर, पेशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर, कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म पर, और पेशेंट को सीधा ऑपरेटरी में लेके जाना है. सो कोई पेशेंट से बहुत ज्यादा बात नहीं होगा. डेफिनेटली एक वेलकम जरूर होगा, लेकिन पेशेंट से बहुत ज्यादा बात नहीं होगा. तो पेशेंट के लिए ये सब नया है, क्योंकि ये हमारे लिए भी नया है. इसीलिए मैंने आपको बोला कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल डेंटिस्ट्री, बिकॉज डेंटिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी द सेम इन द फ्यूचर. ट्रस्ट मी, कोविड जाने के बाद भी डेंटिस्ट्री सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ चीजें हम अपने प्रैक्टिस में अपना रहे, मुझे गारंटी है कि हम में से बहुत सारे लोग उसी टाइप का प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे. ओके, शायद फर्क इतना ही पड़ेगा कि हम एरोसोल से डरेंगे नहीं, पीपी किट्स की शायद हमें आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है. और एक जिम्मेदार डेंटिस्ट होने की हैसियत से मैंने सोचा कि ये हम लोग अपने स्माइल एक्सेल में भी अभी से शुरू करें. ओके, तो आपके रिसेप्शनिस्ट ने ये सारी चीजें पेशेंट को अच्छे से समझाना है कि जो कुछ हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये हम सबके सेफ्टी के लिए हो रहा है. तो इससे डरना नहीं है, इससे बहुत ओवरवेल्म होना नहीं है, बहुत ही रिलैक्स वे में आना है. और डेंटल एक्सपीरियंस उन्हें ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस वैसा ही रहेगा जैसा पहले होता था. फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत सारी चीजें जो हम अभी नई नई फॉलो करने लगे हैं, वो शायद पहले नहीं थी. ओके, सो ये चीज है. और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके वेटिंग रूम में, आपके फ्रंट डेस्क पर, आपके रिसेप्शन टेबल पर कुछ भी ना रहे. इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लटर फ्री. ओके, कुछ भी ना रहे. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्यों? क्योंकि हम किसी भी तरीके का कोई भी कॉर्नर या कोई भी एरिया वायरस स्प्रेड के लिए नहीं रखना चाहते. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. फिर जैसे ही पेशेंट आता है, तो रिसेप्शनिस्ट ने सबसे पहले पेशेंट को क्लिनिक के एंट्रेंस पर वेलकम करना है. ओके, वेलकम करने के बाद सबसे पहले पेशेंट को हैंड सैनिटाइजर देना है, ताकि अगर पेशेंट इधर उधर कहीं भी हाथ लगाकर छूकर आता है, तो सबसे पहले उसके हाथ सैनिटाइज हो जाए. और हैंड सैनिटाइजर कम से कम यहाँ तक, एल्बो तक, या कम से कम रिस्ट के ऊपर तक लगाने के लिए उन्हें बोलना है. ओके, और इसीलिए जो मैंने बोला था कि हाफ शर्ट या टी शर्ट इसीलिए पहनना है, ताकि वो यहाँ तक अच्छी तरह से हैंड सैनिटाइजर लगा सके, और पेशेंट को बोले कि इस तरीके से आपके हाथ रखें. फिर उसके बाद में पेशेंट का आप इंफ्रारेड थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें. उसके बाद में पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट करें.
बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने ये भी देखा कि थर्मल टेस्टिंग और ऑक्सीजन सैचुरेशन का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कुछ चीजें हम लोग कर रहे हैं, अगर इनमें से हर एक इंडिविजुअल चीज का देखे तो शायद कोई मतलब नहीं है। आई एम श्योर कि आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि केवल इंफ्रारेड थर्मामीटर कभी नहीं बता पाएगा कि पेशेंट को कोविड है या नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स, इनफैक्ट जहां तक मुझे पता है, 2/3 से ज्यादा पेशेंट, मोर देन 2/3 ऑफ द पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली असिम्टोमेटिक। मतलब वो, उनको कोरोना पॉजिटिव आता है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं सिविल हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उनको 10 दिन तक 15 दिन तक भी कोई सिम्टम नहीं आता, सादा बुखार भी नहीं आता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एक सिंपल पैरासीटामोल के अलावा कुछ भी दिया नहीं गया। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि न कि इंफ्रारेड थर्मामीटर हमें एक फुल प्रूफ गारंटी देने वाला है, न कि यहां तक हैंड सैनिटाइजेशन कराना फुल प्रूफ गारंटी देने वाला है, न कि पल्स ऑक्सीमीटर हमें फुल प्रूफ गारंटी देने वाला है। जो भी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिस में फॉलो करने वाले हैं, इनमें से कोई भी चीज हमें 100% अश्योरेंस नहीं देगी। लेकिन ये सारी चीजें कलेक्टिवली एक साथ अगर हम लोग मिला दे, तो मुझे इस बात की जरूर गारंटी है कि हम 99.9% सेफ जरूर हो जाए। 100% सेफ तो हम शायद सब्जियां खरीदते वक्त भी नहीं है, हम लोग ग्रोसरी स्टोर्स पर भी नहीं है, हम लोग लिफ्ट में भी नहीं है, हमारे अपने सोसाइटीज में भी। 100% सेफ तो कोई भी नहीं है। ओके, सो ये सारी चीजें हमें करनी इसलिए है ताकि हम कम से कम 99.9% सेफ हो जाए। एज आई टोल्ड यू, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। सो इस बात पर आर्ग्यू करने से या डिबेट करने से कि ये यूजलेस है, ये थर्मोमीटर तो चाइनीज है, ऐसा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन से क्या होने वाला है। सी एकदम सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का 95 से नीचे आता है, सो एटलीस्ट ये एक अलार्म है, एक खतरे की घंटी है, एक बैड साइन विजिबल है। एंड आई वॉरेन बफेट ऑलवेज सेज, बैड साइन विजिबल इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ बैड साइन इनविजिबल। सिंपल। तो ये कम से कम हमें एक क्लू देता है कि इस पेशेंट को हमने शायद हिस्ट्री थोड़ा और अच्छे से पूछना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी का अगर ऑक्सीजन 93 आ जाए तो वो तुरंत कोरोना पेशेंट बन गया, ऐसे नहीं होता है, राइट? आप भी जानते हो। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए है ताकि हमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर मिले अपने आप को और सबको सेव करने का। तो मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, सजेशन है आप सबसे, कि इन चीजों पर आर्ग्यू करने के से अच्छा है कि हम चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि इनमें से किसी चीज से अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो इस बात की तो गारंटी है कि नुकसान पक्का नहीं होगा। अगर पेशेंट वॉक इन भी आता है तो आप ये सब चीजें करें और आप देखोगे कि ये जरूर एक सेफ्टी लेवल बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूं, सेफ्टी लेवल के साथ अगर कुछ बढ़ता है तो आपका ये सेफ्टी बढ़ता है। व्हेन यू आर मेंटली स्टेबल एंड सेफ, व्हेन यू फील सिक्योर, you perform better, you will able to handle the patients in the right way. Okay, so ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ये सब करना है। इसलिए नहीं करना है कि पल्स ऑक्सीमीटर हमें डायरेक्ट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट दे देगा, नो। ओके, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम लोग सब एक साथ करेंगे, आई एम श्योर कि हम लोग बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे अपनी प्रैक्टिस करने में, राइट? सो रिसेप्शनिस्ट को उसके बाद चाहिए कि सबसे पहले, क्योंकि पेशेंट के हाथ सैनिटाइज रहेंगे, तो उन्हें सबसे पहले पेयर ऑफ ग्लोव्स दिया जाए, ओके, शू कवर दिए जाए, हेड कैप दिया जाए। अगर आप पेशेंट को अलग से मास्क देना चाहते हो तो मास्क भी दे सकते हो। और रिसेप्शन पर पेशेंट केवल इन 3 फॉर्म्स पर सिग्नेचर करे। सिंपल। अगर आपके यहाँ पर पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म पे साइन नहीं लिया जाता है तो 2 फॉर्म पर सिग्नेचर करें, खत्म। इमेजिन, अब ये दिखने में 10-12 पॉइंट लगते हैं, हम लोग जिसे एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी की ये खास बात होती है, ये दिखने में बहुत लंबा लगता है, लेकिन अगर हम लोग इन्हें प्रैक्टिकली फॉलो करें तो हम लोगों ने किया क्या है, आप सब विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि पेशेंट आया है, आपके रिसेप्शनिस्ट ने उसको एंट्रेंस पे ग्रीट किया है, उसको हैंड सैनिटाइजर दिया, या अगर आपके पास स्टैंड वाला हैंड सैनिटाइजर है तो उससे उसको सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करने के लिए बोला गया है। उसके बाद उसका टेम्परेचर टेस्टिंग, पल्स ऑक्सीमीटर टेस्टिंग, और उसके बाद उन्हें सबसे पहले ग्लोव्स और फिर हेड कैप, शू कवर, मास्क
जो भी देना है, खत्म। और फिर तीनों फॉर्म पे साइन करना है एंड डायरेक्टली गाइड द पेशेंट टू द ऑपरेटरी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पेशेंट को वेटिंग में भी न बैठने। जरूरी नहीं है कि अपने यहाँ पर आने वाला पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन अगर हमें सेफ और सिक्योर रहना है तो आने वाले हर एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव समझकर ही ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, सो डायरेक्टली गाइड द पेशेंट टू दी ऑपरेटरी। सो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। ये सारे काम आपके और मेरे रिसेप्शनिस्ट के रहेंगे। ओके, फिर हमारे डेंटल असिस्टेंट के लिए क्या है? सो डेंटल असिस्टेंट ने ये चीज ध्यान रखना है कि आपका ऑपरेटरी क्लटर फ्री हो। ओके, आपका ऑपरेटरी क्लटर फ्री हो, वहां पर भी सब कुछ एकदम साफ सुथरा, कोई भी चीज वहां पर ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से बहुत कुछ आपका पेपर्स पड़े हो, प्रिस्क्रिप्शन पैड पड़ा है, पेन पड़ा है, ये सब कुछ नहीं। ऑपरेटरी एकदम क्लटर फ्री। जो भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स है, ओके, वो पहले से तैयार होने चाहिए। मैं फिर एक बार बात करता हूं इस पर। Keep the dental chair, its arm furniture covered with the clean wrap. Okay? जो आपको पता होगा खाने पर वगैरह जो आता है, ओके, फ्रूट्स पर आता है, फूड पर आता है, जो ट्रांसपेरेंट थिन प्लास्टिक आता है जिसे क्लीन रैप बोलते हैं, ओके, उससे आप हर चीज को कवर कर लें। ये इसलिए जरूरी है कि जब पेशेंट जाएगा और हम अपने ऑपरेटरी को सैनिटाइज करेंगे तो उसे सैनिटाइज करने में हमें बहुत आसानी होगी। सो आपके टेबल का डेस्क, आपके कंप्यूटर का, अगर वहां पर कंप्यूटर रखा है, अगर कीपैड रखा है, तो सबको आप क्लीन रैप से कवर कर लें। चेयर के हैंडल्स, जो चेयर का लाइट है, उसे भी क्लीन रैप से अगर आप कवर कर लोगे, जो भी ओपन फर्नीचर है, सब चीज को क्लीन रैप से कवर कर ले, ताकि बाद में इसको क्लीन करने में बहुत इजी हो जाएगा। हाँ? और जैसे कि अगर पहला अपॉइंटमेंट है पेशेंट का, तो ऑपरेटरी एकदम क्लीन रहेगा और उसे पूरी तरह से रेडी रहेगा डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, राइट? अगर पेशेंट का दूसरा अपॉइंटमेंट है, यानी आपको पता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स और मटेरियल वो आप वहां पर रेडी रखोगे। ये आपके डेंटल असिस्टेंट का काम है। ओके, सो ये रेडी रहने का फायदा ये होगा कि सब कुछ एकदम ही स्मूथ और अच्छे से आप काम कर सकोगे, न कि पेशेंट आने के बाद आप अलग अलग ड्रॉवर्स खोल रहे हो, ये कर रहे हो। याद रखें, मोटो एकदम सिंपल है, कम से कम समय पेशेंट रहें और हम लोग ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली ट्रीटमेंट कर सकें। ओके, फिर अगर आपके यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है तो आप फैन स्विच ऑफ कर सकते हो, एग्जॉस्ट फैन स्विच ऑफ कर सकते हो, या अगर विंडो ओपन है तो विंडो ओपन कर सकते हो। याद रहे कि जहां पर सपोज मैं बैठा हूं, मेरे सामने पेशेंट का चेयर है, उस साइड में असिस्टेंट है, तो फैन इधर रखिए, विंडो वहां होनी चाहिए, ताकि ये इस डायरेक्शन में जाए, ताकि अगर जो भी एरोसोल या कुछ भी अगर पेशेंट के मुंह से ड्रॉपलेट्स या कुछ भी निकलते हैं, तो वो हम दोनों की तरफ न आते हुए वो उस डायरेक्शन में पुश हो जहां पर हमारा विंडो या एग्जॉस्ट है। ओके, अगर आपके यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, इन दैट केस आपको हेपा फिल्टर लेना जरूरी हो जाएगा, वरना कोई दूसरा चांस नहीं है कि जिससे हम लोग इससे बच सके। ओके, सो हेपा फिल्टर पहले से स्विच ऑन होना चाहिए, फैन पहले से स्विच ऑन होना चाहिए, विंडो पहले से खुली होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन पहले से स्विच ऑन होना चाहिए। ये सब चीजें डेंटल असिस्टेंट ने इंश्योर करनी है कि पेशेंट अंदर आने से पहले हो जाए। और कुछ चीजें जैसे आपकी वाटर लाइंस हैं, उसमें 0.01% सोडियम हाइपोक्लोराइड डालकर रखें, वो रेडी रखें। डेंटिस्ट और असिस्टेंट पूरी तरह से तैयार हो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आने के बाद आप ग्लोव पहन रहे हो, फिर हेड कैप पहन रहे हो। नो, यू शुड बी एब्सोल्युटली रेडी बिफोर द पेशेंट एंटर्स द ऑपरेटरी। ऐसा नहीं है कि अभी पेशेंट डोर स्टेप पर आ गया है, सो बाय द टाइम द रिसेप्शनिस्ट डू ऑल द एसओपीज फॉर हर, फिर आप आपका काम करोगे। नो, आपको पता है कि सपोज फॉर एग्जांपल 12 बजे का अगर अपॉइंटमेंट है, तो आप 11:45 से आपकी तैयारी शुरू करें। ये बहुत जरूरी है। ओके, पेशेंट को डेंटल चेयर पर बैठाएं और उन्हें कंफर्टेबल बनाएं। ओके, पेशेंट को बिल्कुल जरूर ये चीजें बताना बहुत जरूरी है कि आप कोई टेंशन न ले, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल उतना ही अच्छा होगा यहाँ पर जैसे हमेशा से होता है। ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये आपके हमारे सेफ्टी के लिए। जैसे ये चीज रिसेप्शन ने पेशेंट को
फोन पर बोलनी चाहिए, उसी तरह से आपके रिसेप्शन ने ये चीज पेशेंट को एंट्रेंस पर भी बोलनी चाहिए, उसी तरह से आपने पेशेंट को चेयर पर लेने के बाद तब भी बोलनी चाहिए, ट्रीटमेंट होने के बाद भी बोलनी चाहिए। क्योंकि डेंटल फोबिया, दांतों के इलाज का डर, ये दुनिया में टॉप 20 फोबियाज में से एक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को जितना कंफर्टेबल करोगे, ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो और पेशेंट को अगर आप बार बार कंफर्टेबल बनाते हो, तो पेशेंट सारे दुनिया में आपका गुणगान गाएगा। ओके आप जानते हो मैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट के ऊपर बात करता हूं, एंड अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो दो, एक तो वैल्यू और दूसरा एक्सपीरियंस। सो पेशेंट को इस कोविड के चैलेंजिंग टाइम्स में भी इस टाइप का एक्सपीरियंस दिया जाए कि पेशेंट बिल्कुल जी भर के आपकी तारीफ करे और सारे दुनिया को बताए, और इसका बेनिफिट आपको आपके प्रैक्टिस में कोरोना के बाद बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ये चीज याद रखिए। ओके क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें केवल कोरोना टाइम्स तक प्रैक्टिस करना है, हमें उससे आगे भी प्रैक्टिस करना है। ओके सो प्रिपेयरिंग फॉर द वर्क, जैसे कि मैंने बोला डेंटिस्ट और असिस्टेंट दोनों ने पहले से तैयार रहना है। तो डॉनिंग डॉफिंग आप सब अब तक जान चुके होंगे, तो जस्ट एक सीक्वेंस है, यू कैन वेयर द सर्जिकल गाउन, फिर उसके बाद हाथ धोकर वेयर योर N95 मास्क फर्स्ट, फिर उसके बाद हेड कैप पहने, शू कवर्स पहने, ट्रिपल लेयर मास्क उसके बाद पहन ले। तो ये जो पोर्शन है इसको पहले आप सिक्योर कर ले, क्योंकि ये 3 ही एंट्रेंस है वायरस को या हमें इन्फेक्शन के लिए, राइट। वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस, वेयर द फेस शील्ड, वेयर द शू कवर्स, वेयर द ग्लव्स। ओके अगर आप कोई एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर कर रहे हो, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स 31 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने एनीवे बैन की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बोला है कि नेक्स्ट डायरेक्टिव तक नो डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट। सो जब भी ये शुरू होगा, क्योंकि कभी ना कभी हमें एरोसोल प्रोसीजर करनी ही पड़ेगी, अ डेंटिस्ट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एरोसोल्स, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट, सो इन दैट केस यू वेयर द पीपीई। अदरवाइज अगर आप एरोसोल प्रोसीजर नहीं करने वाले हो तो आपके सर्जिकल गाउन के ऊपर आप डिस्पोजेबल एप्रन भी पहन लो तो भी काफी है। ओके एंड उसके बाद में सेकेंड पेयर ऑफ ग्लोव्स हमें पहनना है, राइट। जो भी क्वेश्चंस आप लोग वहां पर डाल रहे हो फेसबुक पर, मैं एंड में फिर एक बार इसके आंसर दूंगा। ओके जो लोग बाद में ज्वाइन हुए उनसे ये चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर ये जो मैं प्रेजेंटेशन बनाया है अपने क्लिनिक का एसओपी, अगर ये आपको चाहिए तो मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म पर क्लिक करके आपके डिटेल्स भेज दे, आपको ये कल ईमेल कर देंगे। ओके सो लेट्स मूव अहेड एंड राइट। सो नाउ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्री प्रोसीजरल माउथ रिंस, इन सिंपल पेशेंट को माउथ वॉश देना है। नाउ वर्ल्ड ओवर 3 चीजें थी जिसके ऊपर चल रहा था कि कौन सा माउथ वॉश बेस्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोविडोन आयोडीन है और क्लोरहेक्सिडिन है। ओके सो इसमें सबसे ज्यादा बार जिस चीज का जिक्र हुआ इंडिया में भी और इस इंडिया से बाहर भी, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ओके उसके बाद पोविडोन आयोडीन है और उसके बाद क्लोरहेक्सिडिन है, राइट। सो इन तीनों माउथ रिंसेस को में से आपको कोई एक यूज करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एट स्माइल एक्सेल हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोविडोन आयोडीन में से एक यूज करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को आयोडीन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे पेशेंट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसी पेशेंट को अगर एप्थस अल्सर है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भले ही हम लोग सिर्फ 1% दे रहे हैं लेकिन फिर भी पोविडोन आयोडीन, और उसके बाद में एक जस्ट एडिशनल सेफ्टी बोलकर हम क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश भी देंगे। यानी किसी एक को अगर कोई एक दिया तो भी काफी है, लेकिन हम ने ये डिसाइड किया है कि अपने प्रैक्टिस में हम 2 देंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडीन में से एक और क्लोरहेक्सिडिन। एट द सेम टाइम अगर पेशेंट को कुला करना है, रिंस करना है, सो उसमें भी you can just add either the povidone iodine or chlorhexidine. However, if you ask me, we should discourage the rinsing. Okay, so I'll talk about it more again. So yes, as I said, use of spittoon should be avoided as far as possible. In fact, if patient is comfortable, if you are comfortable, तो patient जब mouth rinse करता है
तो वो वापस उसी ग्लास में धीरे से उन्हें रिटर्न डाल देने के लिए आप बोल सकते हो। अगर आप स्पिट्यून का यूज अगर पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। दोस्तों मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि आप प्लीज आपकी ईमेल आईडीज यहाँ पर मत डालें, क्योंकि शायद कोई मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर एक बार आपके लिए गूगल फॉर्म मैंने कमेंट बॉक्स में डाला है। सो और ओके, और इस गूगल फॉर्म को मैं फिर एक बार ओके यहाँ पर पिन करता हूं, ताकि आप ये फॉर्म में अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, सो आई जस्ट डू इट वंस अगेन, राइट? सो अवॉइड द यूज ऑफ स्पिट्यून if possible. Okay, I hope all of you are able to see uh, the form here. Okay, so somehow I'm not able to pin it, but that's fine. That's fine. Okay, you can just Dr. Hema, just let's have the questions towards the end, so that okay, things will be in flow, right? So use of spittoon should be avoided. Right. The next thing is extraoral scrubbing. Okay. Just a moment, guys. अरे तुम बंद करो, क्या करो? Okay, then extraoral scrubbing of the face with povidone iodine is the thing which should be done. Yes. Then the next thing to do is to do the proper examination, diagnosis, and differentiating the treatment in two categories. Okay. The first category is the emergency, urgent, or elective procedures. And the second category is aerosol generating and non-aerosol generating procedures. Okay. अगर हम लोग ये चीज करते हैं तो it will make our mind and our practice very simple. Now, what we need to do? Dr. Ganesh is not able to see the Google form. Don't worry. I'll just, put the Google form once again, or maybe toward the end of this presentation, I'll do it again. Don't worry. I'll do it for you. I'll do it. There is some problem. I don't know why it's not getting uploaded. Let's see. Okay. So let's move ahead. And yes, so out of all the emergency, urgent, and elective procedures, the elective procedure should be postponed. Okay, it's very easy. And let me tell you, सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी ट्रीटमेंट से है, ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। बेसिकली 4 ट्रीटमेंट्स है जहां पर एरोसोल जनरेशन हाईएस्ट होता है। एक तो है कि आप रूट कैनाल, दूसरा फीलिंग्स या रेस्टोरेशंस, तीसरा स्केलिंग, और चौथा टिप प्रिपरेशन ब्रिज वगैरह के बाद, राइट? सो बेसिक ट्रीटमेंट्स में ये 4 ट्रीटमेंट्स है जहां पर एरोसोल जनरेशन हाईएस्ट होता है। अब इन चारों को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? दांत साफ करना, राइट? ओरल प्रोफाइलैक्सिस कैन बी पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट 2, 3, 6 months also, without any hesitation. You just explain this to the patient, and I'm sure your patient will understand if you explain them properly. Okay, and the scaling, polishing can be postponed for, till the corona is there. Very simple. For next 2, 3, 6 months also you can do it. And I'm sure by the time kuch aur naya protocol aa jayega, probably all of a sudden we'll come to know that dentistry is very safe or whatever, right? So and we'll be able to restart the aerosol procedures without any problem. We don't know that, right? The restorations or fillings and root canals can be done with rubber dam very easily. Okay, so that reduces the risk, or that define the risk only to the tip preparation for the bridge or crowns. Okay, so except that crown and bridge work, everything will be simple now. Okay, so now how to go ahead? And
there is a definite way you can use the electric motor. Okay, I'll talk about it towards the end of the presentation again, right? Use 400 dentistry, use rubber dam, and if you use rubber dam and if you just avoid scaling, your 90% problem is anyway solved, right? Use high wax section and minimize use of IOPA if possible. If possible, okay, अगर आपके यहाँ पर आप IOPA का यूज मिनिमाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं कर सकते तो मेक श्योर, क्योंकि ये डायरेक्ट सलाइवा के कांटेक्ट में आपका एक्सरे फिल्म या सेंसर आएगा, तो उसको डिस्पोजेबल स्लीव आप यूज कर सकते हो. इनफैक्ट आप एक्सरे फिल्म के लिए भी डिस्पोजेबल स्लीव यूज कर सकते हो. Okay, so that it will make things very safe. If you have a practice ki jahan par OPG hai, so okay, so you can use the OPG, right? So Dr. Amit says any blood test before extraction, it's all about the routine blood test. Okay, what is important is you should take the complete precautions rather than asking patient to get the COVID test done. Let me tell you, कोविड का टेस्ट गवर्नमेंट भी अभी 10 दिन के बाद नहीं कर रहा है. That's what I have heard. Okay, if there is a positive patient, they are hospitalized, and if they are asymptomatic after 10 days, they are sent home even without the second test. That's what I have heard. Okay, so yeah. Now Dr. Atmajit says that in US they don't recommend rubber dam. I'll tell you the reason. I have read this particular thing. Okay, that rubber dam actually increases the aerosol. It doesn't increase the aerosol, it spreads the it increases the spread of aerosol, aisa bolte hai, because the aerosols hits the rubber dam and they spread more. That's what I have read in one of the articles. Now probably it is on that line only, Dr. Atmajit. Let me tell you one thing. It's not the aerosols which are problem. It is the contaminated aerosols which are the problems. And I'm sure all of you will agree with this. Okay, now the beauty of rubber dam is it will almost make the contaminated aerosols to zero. Okay, or if not zero, at least 90-95%. Except maybe when you enter the pulp chamber and if it's a vital tooth or something, then it's different. Otherwise, the beauty of the rubber dam is it reduces the chances of contaminated aerosols to almost nil, and that's why rubber dam should be. Okay, Dr. Shruti says RVG. Yes, you can use RVG if you want to use RVG. Okay, so make sure that, as I said, कि आप RVG को भी स्लीव में डाल सकते हो, डिस्पोजेबल स्लीव में, जो तो एनीवे हम लोग करते ही है एक्चुअली डिस्पोजेबल स्लीव. आई वाज जस्ट एक्चुअली सेइंग कि यू कैन यूज द डिस्पोजेबल स्लीव इवन फॉर योर रूटीन एक्सरे आल्सो इफ यू आर यूजिंग द कन्वेंशनल एक्सरे. ओके, so that's it. Post treatment, the first thing you need to tell the patient is to remask again, give the hand sanitizer first, send the patient to the reception area without touching anywhere. Encourage patient for the cashless payment. Agar patient cashless nahi pay karta, in fact here my advice will be encourage patient to use about using the QR code, not even the credit card. Try to avoid taking the credit card as well as the currency notes as much as possible. I'm sure आप में से काफी लोग रूरल एरिया में भी प्रैक्टिस करने वाले होंगे. वो बोले कि सर हमारे यहाँ पर तो पेशेंट कैश में ही पैसा देता है, करेंसी नोट्स ही मिलता है, स्वाइप मशीन तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, एक्सेट्रा. लेकिन मैं आपको बता दूं, रूरल एरिया में भी लोग पेटीएम, पेजैप, भीम, यूपीआई यूज करते हैं. इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप आपके प्रैक्टिस को डिजिटाइज कर सकते हो इस बहाने से. एंड ट्रस्ट मी, आप हैरान हो जाओगे ये देखकर कि 50% से ज्यादा पेशेंट्स इस चीज को तैयार हो जाएंगे और वो खुश भी होंगे. आई एम टेलिंग यू, हर बार जब भी कोई चीज आप डालते हो सामने पेशेंट के कि भाई इस ढंग से हम लोग काम करने वाले हैं, सो आपको उन्हें ये बताना चाहिए कि ये हमें क्यों करना है. क्योंकि ऐसा पड़ा है कि करेंसी नोट पर कोरोना वायरस लगभग 2 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है. अब शायद ये पूरी तरह से हमें पता नहीं है. ओके, हर चीज, सी इट्स व्हाटएवर इज हैपनिंग इन कोरोना, इट्स अ रियल टाइम थिंग. आज कुछ अगर नया रिसर्च हो गया तो कल एक प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा. मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे काफी जगह ये भी देखा कि हर रोज नया प्रोटोकॉल आ रहा है, हम लोग क्या करें.
बॉस ये चीज समझ लो कि अगर हर रोज नया प्रोटोकॉल आ रहा है तो आपके और मेरे अच्छाई के लिए आ रहा है, हमारे भलाई के लिए आ रहा है, पेशेंट्स के भलाई के लिए आ रहा है। सो अगर कोई नया प्रोटोकॉल आता है तो हम लोग जरूर उसे फॉलो करेंगे। आज जो प्रोटोकॉल जो हमने डिजाइन किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है 15 दिन 1 महीने बाद और कुछ चीजें बदल जाए, लेकिन ये सब अपने भलाई के लिए ही है। तो इसे समझकर इसे पॉजिटिवली ले। कैशलेस पेमेंट भी अगर आप पेशेंट को ये चीज बोले और उनको ऐसे बोले कि न केवल हमारे यहाँ पर बल्कि आप कहीं और भी शॉपिंग करने जाओ तो कोशिश करें कि आप कोड स्कैन करके ही पेमेंट करें। पेशेंट आपको जरूर थैंक्स बोलेगा एक नई चीज एजुकेट करने के लिए। तो सिटीज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम पेशेंट्स कैश से पैसा देते हैं, लेकिन रूरल प्रैक्टिस में डेफिनेटली लगभग 100% पेशेंट कैश में ही पैसा देते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप इनकरेज करें पेशेंट को, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप 15 दिन 1 महीना देखें और उसके बाद यू विल बी सरप्राइज टू सी कि सब कुछ बदल गया है आप ही के प्रैक्टिस में और आप ही के लिए अच्छा हो गया। एक्चुअली ऐसा है। ओके, सो फॉर्म नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, मैं लास्ट में फिर एक बार फॉर्म डालता हूं। ओके, आई जस्ट पुट इट अगेन, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, यस, सो अगेन नॉट ओनली द पेमेंट, I would advise you to give the receipt and the prescription also in the digital format. अब डिजिटल फॉर्म में आप कैसे दोगे? आप नॉर्मल आपके प्रिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हो और उसका फोटो निकालकर पेशेंट को व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर पेशेंट तो हमारे यहाँ सर पेपर लेकर जाने वाला है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ सकता है अगर वो पेपर लेकर वापस आया और अगर उसमें कोई गड़बड़ रही। जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक चीज हमें 100% प्रोटेक्ट नहीं करती है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी सैकड़ों चीजें हमें 99% प्रोटेक्शन जरूर देती। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन का ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके और मेरे पास कि हमारा प्रैक्टिस जितना हो सके हम लोग डिजिटाइज कर दें। पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन भी डिजिटल दे, पेशेंट को रिसिप्ट भी डिजिटल दे, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस आप बोले भी साथ में डिजिटल भी दे। अगर आप खुद अगर समय निकालते हो या आपके रिसेप्शनिस्ट को बोलते हो तो जितने भी ट्रीटमेंट्स आप करते हो उसके जो भी पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सबको टाइप करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में दोस्तों कुछ भी समय नहीं लगता है। आई एम श्योर यू ऑल्सो विल एग्री टू दिस कि ये 1 घंटे का काम है। हमें पता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर ट्रीटमेंट वाइज इंस्ट्रक्शन बना के रखें और पेशेंट को व्हाट्सएप पर भी भेज दें। पेशेंट एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएगा कि वो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। एट द सेम टाइम आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम एक लीगल प्रूफ जनरेट हो जाएगा। जैसे कि कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में भी काफी कुछ चल रहा था, ये लीगल है नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी अगेन, इट इज नॉट अबाउट वेदर इट इज लीगल और नॉट, इट इज एन एडिशनल सेफ्टी टूल। कल को अगर कुछ होता है, कोई पेशेंट अगर कोई मेडिको लीगल इश्यूज में आपको अटकाता है तो आप बता सकते हो कि बॉस हमने पेशेंट से पूछा था कि ये सारी चीजें आपको कोई पूरा हिस्ट्री लिया था, कोई कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में तो नहीं आए हो, फैमिली में किसी को फीवर तो नहीं है एक्सेट्रा, सब कुछ लिया था। और उसके बाद शायद अगर पेशेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी होगी या पेशेंट को ही पता नहीं होगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमें जरूर हेल्प करती है। मेडिको लीगल का टेंशन ना ले, जब भी पैंडेमिक होता है तो द गवर्नमेंट इटसेल्फ इंडेमनिफाइड द एंटायर द मेडिकल फैटर्निटी। सो इसमें कोई केस डॉक्टर पे नहीं होता है, ये इंडेमनिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाता है पैंडेमिक। ओके, सो उसका टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितना सिक्योर रह सकते हो, जितना फुल प्रूफ रह सकते हो रहे। मैं बता रहा हूं आपको कि आपको शायद ये लगेगा कि ये बहुत लंबा चौड़ा खेल है, पर एक बार आपके रूटीन में आ जाएगा तो ये सब कुछ करने में केवल 5 मिनट का समय लगता है। जैसे कि पीपीई किट पहली बार पहन के काम करोगे तो जो काम आप 10 मिनट में करते थे उसे 1 घंटा लगेगा, लेकिन जैसे ये सब रूटीन में आ जाएगा, ये सारे प्रोटोकॉल्स रूटीन में आ जाएंगे, ये सारी चीजें आप एफर्टलेसली उसी ढंग से 5 7 10 मिनट में कर लो। ये जैसे आपके लिए नया है, मेरे लिए भी नया है, हम सबके लिए नया है। 21 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी ये सारी चीजें नहीं है। ओके, सो ट्रीटमेंट के बाद रिसेप्शनिस्ट को चाहिए कि ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस के बारे में पूछे, डिजिटल पेमेंट एनकरेज करे, उसके बाद अगर कोई कैश देता है तो ले ले, टेंशन ना ले। ओके, सो उसके बाद आस्क पेशेंट टू रिमूव ग्लोव्स, शू कवर एंड हेड कैप, राइट? गिव हैंड सैनिटाइजर अगेन एंड सी ऑफ द पेशेंट। नाउ हियर आई वांट टू ऐड वन थिंग कि पेशेंट को आप उसका एक्सपीरियंस जरूर पूछे, मतलब आपके रिसेप्शनिस्ट ने पूछना चाहिए।
और अगर पेशेंट आपके सारे जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपने फॉलो की है पेशेंट को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए, आपके सेफ्टी के लिए, ओवरऑल सेफ्टी के लिए, तो आई एम श्योर लगभग हर पेशेंट बहुत खुश होकर वापस जाएगा। सो वो जो समय होता है वो एक बहुत अच्छा समय होता है, या तो आप उसे गूगल रिव्यू मांगे या वीडियो टेस्टिमोनियल दे, या अगर कोई दूसरा ऐप, ऑनलाइन ऐप आप यूज करते हो तो वहां पर टेस्टिमोनियल दे। ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है। somebody asked what is your take about video testimonial? Yes, see video consultation, yes, video consultation तो करना ही है। ये सब जो प्रोटोकॉल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पेशेंट क्लिनिक में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग पेशेंट को वीडियो कॉल या फोन कॉल पर ही अगर पेशेंट का दांत का दर्द दूर कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये वो समय है जब हम लोगों ने वो जरूर करना चाहिए। जैसे कि पिछले लगभग 65 दिनों से स्माइल एक्सेल में हम लोगों ने 100 से ज्यादा वीडियो या टेलीफोनिक कंसल्टेशंस की है। Okay, and just as a goodwill gesture to our patients, we have not charged any consultation fees also to them for the phone call or video consultation. That's fine. So trust me guys, this is not the time when you should think too much about money, too much about practice and practice growth. This is the time where survival is more important. Okay, even if we survive, personally, financially and practice wise and professionally, that is good enough for 2020. I'm not joking. Okay, so I said it in one of my previous webinars and I had read it somewhere. If you and me keep ourselves and our entire family and our surroundings safe in 2020, that will be our biggest victory, and that is enough actually. Okay, so every time it's not the time for profits, every time it's not the time for growth. Okay, we'll talk about the treatment charges, Dr. Shayal. Okay, so this is the good time when you should take the patient testimonial, and that will be very useful to you, right? Post treatment for dentist as an assistant, to dog off, wash hands thoroughly, remove the PP agar aapne aerosol generating procedure kiya hai. Remember, aerosol generating procedure should be done with PP only, and that too good quality PP. Okay, otherwise remove the disposable apron, first pair of gloves, then touch your face, remove the face shield, remove the triple layer mask, remove the protective eyeglasses, remove the head cap, remove the N95 mask, remove the second pair of gloves, wash your hands and wear the new mask. Okay, so these are the things after the treatment. Then for your dental assistant, what you should do: change the instruments. Don't change the instrument, that's not a right word actually. Take away the instruments from the operatory. Okay, clean them properly with the instrument sterilizer. First clean the instruments properly, then put them in the ultrasonic bath, then seal pouch, autoclave, and then put it in the UV chamber. You all know that. Okay, so after you take away the instruments, remember to keep the HEPA filter on. Along with that, if you want to be even more protective, अगर आपको और भी फिक्र लेनी है तो आप अल्ट्रावायलेट ट्यूब्स और HEPA फिल्टर दोनों एक साथ आधे घंटे के लिए ऑन रख दें. Wait for 30 minutes. Why it is important? Because ये देखा गया है कि एरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स को सेटल होने में सरफेस पर लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है. सो अगर आप पहले ही सब कुछ क्लीन कर लोगे तो हो सकता है कि 20 मिनट बाद आपका टेबल टॉप, आपका फर्नीचर, आपका चेयर पे वो ड्रॉपलेट सेट हो जाए. सो कितना भी क्लीनिंग करने के बाद शायद फायदा ना हो और गड़बड़ हो जाए, फिर आप भी सोच में पड़ जाए कि यार सब कुछ तो अच्छे से क्लीन था, फिर गड़बड़ कहां. ओके, सो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर ले ले, हेपा फिल्टर ऑन है, अगर पॉसिबल है तो वेंटिलेशन अगर है तो फैन, विंडो, एग्जॉस्ट सब ऑन रखें, यूवी ट्यूब ऑन कर दे अगर वो बाहर किसी को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो रही है तो, and wait for 30 minutes. After 30 minutes, then flush the suction and spittoon drainage with 1% sodium hypochlorite. That is the first thing for 30 seconds or 1 minute. Uske baad again sodium hypochlorite spray se. Okay, clean your dental chair, all the auxiliaries, all the walls. लगभग जब हम लोग खड़े रहते हैं तो 6 feet हाइट तक जहां पर भी एक 3 फीट के सराउंडिंग में सब कुछ आपको क्लीन कर लेना है. ओके, टेबल टॉप, वॉश बेसिन एक्सेट्रा एवरीथिंग. उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग लास्ट में करना है. ओके, ऊपर से नीचे तक क्लीनिंग करते हैं. पहले वॉल्स, फिर टॉप्स, फिर फ्लोर. फ्लोर भी पहले नॉर्मल डिटर्जेंट से क्लीन करें और उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड से. ओके,
Dr. Amit, I'll just take the questions in the end. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपके डेंटल असिस्टेंट को बताएं कि सारे डिस्पोजेबल्स हर बार हर पेशेंट होने के बाद, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल्स रहेंगे, अपने 2 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, असिस्टेंट के 2 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, अपना मास्क, असिस्टेंट का मास्क, ओके, और सारा जो कुछ डिस्पोजेबल्स आप यूज कर रहे हो, 2 ग्लास 3 ग्लास व्हाटएवर, ओके, तो डायरेक्ट बायोमेडिकल वेस्ट के बैग में डालकर वो बैग दिन भर ओपन रहने से अच्छा है कि आप हर पेशेंट के बाद डिस्पोजेबल्स और इवन द पीपी किट वगैरह अगर जो भी आप यूज करते हो सब एक कैरी बैग में डालें और उसे पैक करके फिर वो पूरी कैरी बैग बायोमेडिकल वेस्ट के बैग में डालें। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि हम कोई भी डिस्पोजेबल को खुला नहीं छोड़ेंगे। ये एक एडिशनल सेफ्टी मेजर है फिर एक बार, right? And keep all the carry bags in the biomedical waste, right? At the end of the day, flush the suction and spittoon once again, clean the floor once again, and fumigation, right? I saw a few questions. Dr. Sumit said, sir, we can't use UVGI when we are in operatory. Obviously, हम लोग जब operatory में तब UVGI use करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. As I said, कि एक बार इंस्ट्रूमेंट वहां से आप उठा लो तो हेपा फिल्टर और यूवीजीआई ऑन कर लो, नेचुरली यू शुड बी आउटसाइड द ऑपरेटरी। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं की है क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे अपने प्रीवियस प्रोटोकॉल्स के वेबिनार्स में सब कुछ ये कवर हो चुका है एक्चुअली, ओके, तो यूवीजीआई को डायरेक्ट हमारा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, right? So fumigate the entire clinic. A lot of people have asked about the fumigation. So as Gopi Krishna sir has mentioned in his protocol that you should do one of the 4 things, okay? जिसमें से एक HEPA filter है, एक fumigation है, एक UVGI है, एक surface disinfection है, right? So ये चारों में से एक यूज करने बोला है मिनिमम। So हम anyway 2 यूज कर रहे हैं, HEPA भी यूज कर रहे हैं, UVGI भी यूज कर रहे हैं, and I think that should be enough. फ्यूमिगेशन के लिए एक और अच्छी चीज कि अगर आप फॉगर वगैरह यूज करना चाहते हो, फॉगिंग मशीन, तो ठीक है, वरना आजकल टैबलेट्स भी आती है, so you just put 1 tablet in the water and that will take care of your entire, okay, keep it overnight in the operatory and that's fine, that should be fine, okay? So because we are using HEPA filter and UVGI at our Smile Excel Center, so the third thing which we are going to use is that tablet. नाउ अगेन इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन डिबेट हो सकता है कि वो टैबलेट इफेक्टिव है नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी आर एनीवे यूजिंग 2 एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ. ओके, so this is what we already use at Smile Excel even before the COVID times. Fortunately we have the OPG machine, so we'll be using OPG machine only. Class B autoclave hai, pouch sealer hai, ultrasonic cleanser hai, UV chamber hai, surgical gowns we use anyway, right? So what we have purchased, अब ये मैं आपको इसलिए mention कर रहा हूँ क्योंकि खर्चा भी अपना कितना बढ़ने वाला है. We are going to talk about the cost factor also, okay, कि खर्चा अपना कितना बढ़ने वाला है. We have purchased the Atmosphere Mini HEPA filter by Amway. You can also go for Sharp J80. So ये 2 एक अच्छे स्टैंडर्ड फिल्टर माने गए हैं. ओके, यू कैन यूज वन ऑफ दिस 2 फिल्टर्स, राइट? फिलिप्स का यूवीसी ट्यूबलाइट्स 36 वैट का हम लोगों ने लिया है अपने प्रैक्टिस में. वी आर गोइंग टू परचेस, ओके, ऑर्डर दिया है, अभी तक मिला नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो, सो दैट कि जहां पर भी हमें टूथ प्रिपरेशन वगैरह के करने के लिए करना पड़े तो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करने का सोच रहे हैं. फ्यूमिगेशन सिस्टम भी ऑर्डर दिया है, उसने 30 दिन बोला है, तो तब तक टैबलेट यूज करने वाले हैं. इंफ्रारेड थर्मोमीटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस हियर. अगर आप ये सबका कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, okay, so because I'm sure कि lot of people are worried about the cost factor also and कितना cost बढ़ाना है. एक वेबिनार में मैंने ये इससे पहले भी ये चीज बताई है. अगर आप ये सब चीजों का कॉस्ट कैलकुलेट करते हो और इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर, मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, चाइनीज लेते हो, तो ये सारी, आई एम नॉट श्योर हाउ इफेक्टिव इट इज एंड इट विल बी, ओके, लेकिन एक जस्ट कॉस्ट के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर अदरवाइज एक 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है. ओके, सो अगर वो इलेक्ट्रिक मोटर अगर चाइनीज आता है
Yes, Dr. Prashant says, tell us about the price. So I'll tell you, I think the Sharp filter is around 22,000 rupees. Atmosphere Mini is somewhere around 30,000 plus minus a couple of thousand. Okay, Philips का tubes 4-5 हजार रुपए में सब हो गया. Infrared thermometer, pulse oximeter मिलकर 5,000 रुपए. ओके, अगर आप एक अच्छा फॉगिंग मशीन और लिक्विड यूज करते हो तो लगभग 25-30 हजार रुपए में ये भी हो जाता है. इलेक्ट्रिक मोटर 30,000 के आसपास चाइनीज आता है. आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट यूज्ड इट, लेकिन ये सब एग्जैक्ट 1 लाख रुपए में हो जाता है. और अगर आने वाले 1 साल के आप डिस्पोजेबल्स कैलकुलेट करें तो भी वो 1 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा. इनफैक्ट 50,000 रुपए में ही हो जाएगा. मैंने उससे एक वेबिनार में रफली 2 लाख रुपए खर्चा आएगा ऐसे बोला था. लेकिन जहां पे एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स हम लोग नहीं कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप पीपीई किट नहीं भी यूज करें तो भी काफी है. लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोटेक्शन देखा है, N95 मास्क है, उसके ऊपर और एक ट्रिपल लेयर मास्क है, ग्लास है, प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस के ऊपर वापस फेस शील्ड है, हेड कैप है, यू आर यूजिंग योर सर्जिकल गाउन एनीवे, ओके, वॉशेबल सर्जिकल गाउन, उसके ऊपर आप एक डिस्पोजेबल एप्रन पहन रहे हो. तो जहां पर एरोसोल जनरेट नहीं हो रहा है इतना काफी है. And this, frankly speaking, you include the cost of hand sanitizer, gloves to the patient, everything. To be very frank with you, जहां पर आप पीपी यूज नहीं कर रहे हो, ये पूरा कॉस्ट 100 रुपीज भी नहीं होता है एक अपॉइंटमेंट का. सो ये जो वन टाइम एक्सपेंसेस है, मैं इसका कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके, ये या हाई वॉल्यूम सेक्शन, अगर हाई वैक्स सेक्शन आपके पास है तो अच्छी बात है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको खरीदना पड़ेगा, उसका कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगा. बिकॉज आवर चेयर्स ऑलरेडी हैव द हाई वैक्स सेक्शन. वो जो बड़े वाला 60-70 हजार का सेक्शन आता है वो एनीवे इंडिया में अवेलेबल नहीं है जून एंड तक. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट एंड वी ऑल्सो डोंट नो वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट. शायद अगले 1 महीने में कुछ प्रोटोकॉल आ जाएगा, शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े, शायद ये भी हो जाए कि वो कंपलसरी हो जाए तो 50,000 रुपए अपना खर्चा ऐसे भी पड़ जाएगा. ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट जो चीज एनीवे अवेलेबल नहीं है और we anyway can't get it. So अगर आप otherwise देखो तो it's not even 100 rupees per appointment. अब उसमें अब ये 1 लाख रुपए आपको ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सपोज कि आपको 1.5 लाख रुपए ऐड करना है. सपोज यू आर डूइंग ओनली 4 पेशेंट्स अ डे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो यू नो मे बी 300 दिन अगले, तो आप 1200 पेशेंट कर रहे हो. सो 1200 पेशेंट में अगर आपको ये 1.5 लाख, सपोज आप इलेक्ट्रिक मोटर खरीदते हो अच्छे वाला 2 लाख रुपया, ये भी अगर आपको एडजस्ट करना है, सो ये 200 रुपए पर पेशेंट भी नहीं आता, पर अपॉइंटमेंट भी नहीं आता है. डिस्पोजेबल्स के साथ मिलकर ये 250 रुपए पर अपॉइंटमेंट आता है, 250 रुपीज पर अपॉइंटमेंट. एंड आई हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड एवरीथिंग इवन फॉर माय ओन प्रैक्टिस. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो दिस इज जस्ट 250 रुपीज पर अपॉइंटमेंट. Now, in case if you are using the PPE, then it goes up to literally maybe 1,000 rupees per appointment, okay, or 800 rupees per appointment, 700 rupees per, right? And PPE you are going to use only when you do aerosols. अगर एरोसोल नहीं है तो PPE का जरूरत नहीं है, राइट? अब अगर आप बोलोगे नहीं सर 1200 पेशेंट तो आएंगे नहीं, 300 दिन प्रैक्टिस करेंगे या नहीं पता नहीं, 600 आप कंसिडर कर लो, तो भी ये 200 रुपए 250 रुपए पर अपॉइंटमेंट के ऊपर खर्चा नहीं जाता है. सो अगर आप रूट कैनल के पेशेंट को 500 से 1000 रुपए बढ़ाते हो तो आई एम श्योर कि आपका और मेरा पेशेंट बिल्कुल इसमें ना नहीं है, क्योंकि ये पूरा ट्रीटमेंट के दौरान, और पेशेंट ये सब देखेगा. Don't you think patient will see every single thing that you are using the thermometer, you are using the pulse oximeter, your receptionist is also wearing a mask, a face shield, a pair of gloves, shoe covers, head cap, and you're also wearing, your assistant is wearing. They also understand. And anyway, we all know that expenses have increased even outside also. The same lattice gloves which we used to get at 180-200 rupees is now available at 500 rupees. The cost of vegetables have gone up, cost of grocery has gone up, cost of every single thing which you want to use has gone up. So, and it is justifiable. I'll tell you what, it's never the price which is the problem. It's always the value. Patient को वो 200-500 रुपए ज्यादा देने में प्रॉब्लम नहीं आएगा. I'll talk about Dr. Ashish says, sir, please check the calculations. The disposable for doctor, patient, assistant, receptionist, surgical disposable gown, etc. So I'm telling you, will cost
130, 140 rupees. No. See, I'm telling you to use the cotton surgical gown, which is auto-clavable, washable. Okay, if you use it, I think the problem is solved. ओके अगर हम लोग सब कुछ आइडियल यूज करेंगे तो टू बी फ्रैंक हर पेशेंट को हम पीपीई के साथ काम करना पड़ेगा और हर अपॉइंटमेंट का कॉस्ट 1000 रुपए से आराम से बढ़ेगा. सो द एंटायर इंटेंशन इज टू एंश्योर कि कम से कम कॉस्ट बढ़े, एट द सेम टाइम हम सेव भी हो. इनफैक्ट जो भी प्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको बताया है, I'll tell you, इसमें कोई बहुत एलिट प्रैक्टिस करने वाला भी होगा, वो बोलेगा मैं सब बेस्ट खरीद लेता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, खत्म. I'll charge extra to the patient and patient will pay. Patient will have to pay. But then there will be practitioner जो रूरल प्रैक्टिस भी करते हैं, सेमी अर्बन प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास एरियाज में भी प्रैक्टिस करते हैं. तो सबका ध्यान में रखना जरूरी है. अगर आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप ये सारा कॉस्ट कैलकुलेट करें तो ये कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट 200 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, 250 रुपए के ऊपर तो पक्का नहीं जाता है. मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया है, क्योंकि मुझे भी अपने प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट करना जरूरी है. ओके, राइट. सो दिस वाज अबाउट ऑल दिस. I'll take the question and answers within some time. I hope it was useful. Now again, कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो सब आइडियल प्रैक्टिस में हो गया, या फिल्टर भी लो, यूवी लाइट भी लो, फॉगर भी लो, इलेक्ट्रिक मोटर भी लो. आई अंडरस्टैंड दिस. सो हर एक व्यक्ति शायद ये न ले पाए, लेकिन रिमेंबर देयर आर 3 थिंग्स. किसी भी चीज को देखने का ये 3 में से एक नजरिया होना चाहिए. नंबर 1, मस्ट हैव, जो करना ही पड़ेगा. नंबर 2, गुड टू हैव, जो अगर हो तो अच्छा है. और नंबर 3, मे हैव, भाई अगर ये रहा तो सोने पे सुहागा है. सो वैसे इलेक्ट्रिक मोटर शायद सोने पे सुहागा है. ओके, राइट. शायद फॉगिंग मशीन सोने पे सुहागा है. लेकिन अगर आपके यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है तो आप हेपा फिल्टर भी स्किप कर सकते हो, एसी अगर आप नहीं लगाते हो. ओके, सो देयर इज समथिंग व्हिच इज मस्ट हैव. मस्ट हैव में जो सारे प्रोटोकॉल्स मैंने बोला पहले, कि पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट को क्या करना चाहिए, डेंटल असिस्टेंट को, डेंटिस्ट को, जो भी डिस्पोजेबल्स यूज करने की हो, सब सीक्वेंस का जो स्टेप बाय स्टेप हमने बात किया, दैट इज मस्ट हैव. आप बोलोगे सर हमारे यहाँ पर पेशेंट डायरेक्ट वॉक इन आते हैं, तो अगर आप वॉक इन भी आते हैं तो एक्सेप्ट वो जो पहले वाला पार्ट है कि पेशेंट को फोन करके सब कुछ बताए कि उनका डेंटल विजिट कैसे होने वाला है, उसके अलावा आप सब कुछ पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं. और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो भी एसओपी हमने बनाया है वो अपने प्रैक्टिस, अपने सहूलियत के हिसाब से बनाए. आप उसमें आपके प्रैक्टिस के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से आप बिल्कुल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन कर सकते हो. करना ही चाहिए, करना ही चाहिए. लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि ये फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन करते वक्त आप रिस्क पर कॉम्प्रोमाइज ना करें. रिमेंबर, एनीथिंग लेस देन 100% इज इक्वल टू 0%. सिंपल. ओके, तो आप रिस्क पर कॉम्प्रोमाइज ना करें. जहां पर भी रिस्क है वहां पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस चीज का ध्यान रखें. बाकी आप जरूर कर सकते हो. कुछ चीजें जो और बताना चाहूंगा, ये पेडिस्टल फैन या स्टैंडिंग फैन हमने लिया है, पीपी किट, डिस्पोजेबल गाउन, N95 मास्क. यस, 20 मास्क खरीदे. ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया 20 मास्क, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको पता है कि N95 कैसे यूज करते हैं. आप एक मास्क यूज करो तो उस मास्क को आप 5 दिन बाद यूज कर सकते हो. उसे ब्रीदेबल ब्राउन पेपर बैग में रखना है. सो अगर आपके यहाँ पर 4 स्टाफ है तो हर एक को आप 5 मास्क दे दो. हर एक के मास्क के ऊपर नाम, परमानेंट मार्कर से बैग के ऊपर और मास्क के ऊपर नाम लगा दो. डे 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन मे बी आफ्टर 4 days यू कैन रीयूज द फर्स्ट डे का मास्क. इसीलिए N95 मास्क हमारे यहाँ पर अगर 4 लोग हैं तो 20 मास्क लेने. ओके, या 5 लोग हैं तो 20 मास्क लेने. अगर आपके यहाँ पे 3 लोग हैं तो आप 12 मास्क भी ले सकते हो. लेकिन मेक श्योर कि वही N95 मास्क, सेम N95 मास्क आप रोज यूज ना करें. कुछ इन्वेस्टमेंट्स, एज आई सेड, जहां पे रिस्क है उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई ग्लासेस की बात करता हूं. वो 10, 20, 50 रुपए वाला आई ग्लासेस मत यूज करें. वो साइड से पूरा खुला होता है. यू ऑल्सो नो दैट. ओके, टेक वेरी गुड प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस, बिकॉज आईज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द इन्फेक्शन. सो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? So our action steps for our staff, what we have done, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ.
As I said, you can just modify according to your convenience. So homeopathy medicine सबको दे दिए, arsenic album 30, right? कोविड मेडिक्लेम इंश्योरेंस हम लोगों ने सबका निकाला है, सो दैट टू इंश्योर कि स्टाफ को भी एक अलग सेफ्टी रहे। उन लोगों का 2-2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी हमने निकाला है। ये चीजें इसलिए की है, वरना बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर फाइंडिंग इट रिस्की, एंड आई एम श्योर दैट यू पीपल विल आल्सो एग्री टू इट। ओके, सो इससे तो अच्छा है कि आप उनको एक सिक्योरिटी दे, बिकॉज देयर सेफ्टी इज एनीवे योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो एंड दिस डजंट कॉस्ट टू मच। ये सबको 10,000 रुपए भी नहीं लगते सब मिलकर, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन डू दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। स्टाफ को ये कंपलसरी किया गया है कि हर घंटे, हर आधे घंटे में वार्म वाटर पीना है। ओके, हर 1-2 घंटे में चाय या कॉफी या ग्रीन टी पीना है, और उसके लिए आपको बस एक छोटा सा 1500-1700 रुपए वाला केटल लाके रखना है, और गर्म पानी आप पीते रहे, आपके स्टाफ को पिलाते रहे। ये वो छोटी छोटी चीजें जो एक हर, एज आई सेड, सर इससे कोरोना चला ही जाएगा क्या? वी डोंट नो। आवर मोटो इज टू डू आवर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, राइट? इट डजंट कॉस्ट मच। एंड उनको बोला है कि घर से निकलने से पहले, घर पे जाने के बाद हॉट स्टीम इनहेलेशन करे। ये भी एक कहीं पे पढ़ा है, अच्छा होता है, रिकमेंडेड है, करना चाहिए। साथ में एक और चीज मैंने अपने स्टाफ को बोली कि रोज सुबह उठने के बाद ल्यूकवार्म वाटर में, गुनगुने पानी में शहद और नींबू डालकर वो पानी पीना है, और रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर दूध गर्म करके पीना है। So we are doing it, frankly speaking, personally I am doing it, and I want all of you to do it. Don't think this is stupid, this is, इसका तो एविडेंस नहीं है। आप एविडेंस की राह देखते रहोगे, कोरोना आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके, हर चीज का जवाब होना जरूरी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। And these are the times जहां पर whatever best you can do to protect yourself, your staff, your family is important. So do it that way. Okay, so this is what we have done for our staff. And yes, thank you for the presentation. अभी खत्म हुआ है, and I'll just answer all your questions. I'll put the Google form again. अगर आपको ये presentation अच्छा लगा है, if you want this particular presentation, I can email you. Okay, this presentation, and इसमें जो भी modification आप करना चाहो, as I said, 3 categories याद रखें: must have, good to have, and may have. There are few things which are must in the clinic. A good air circulation is must. वो भले आप फैन और एग्जॉस्ट या विंडो से करें या हेपा फिल्टर से करें, सिंपल। ओके, एरोसोल्स ना हो, ट्राई टू यूज इलेक्ट्रिक मोटर। अगर कोविड एक्सटेंड हो जाता है तो अगर 1 आध महीना आप रुक सकते हो, जरूर रुके। ओके, फ्यूमिगेशन, अल्ट्रावायलेट ट्यूब, दोनों में से एक भी काफी है। अगर दोनों है, फिर एक बार सोने पे सुहागा है। सो इस चीज को आप इस ढंग से ले, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ओके, रादर देन थिंकिंग कि यार ये तो बहुत हाईफाई है। कोई हाईफाई नहीं होता, कुछ हाईफाई नहीं होता। ये सारी चीजें ट्रस्ट मी, मैंने मेरे स्टाफ के साथ 2 दिन प्रैक्टिस करवाया, और उनको ये पूरा लर्न हो गया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। इट डजंट टेक टू मच ऑफ टाइम, ऑल इट टेक इज अ गुड इंटेंशन टू मेक इट हैपन।